طرح مجھے شبہ ہے کہ شاید فارسٹ والے ان کے ساتھ ملے ہوئے. ٹمبر سمگلنگ میں کیا سرکاری عہدیدار بھی شامل ہیں؟ جتنے بھی وزیر منسٹر ایون چیف منسٹر تک اس میں سب یہ بڑے لوگ ملے ہوئے تھے. حکومت نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا کوئی حکمت عملی بنائی؟ بالکل افغانستان کے ساتھ وہ سیم ٹو سیم لگ پڑے. جنگلات کی غیر قانونی کٹائی کیسے روکی جا سکتی ہے؟ کاربن ٹریڈنگ سے کیا کوئی مدد مل سکتی ہے؟ وہ لگائیں گے تو کہیں گے ان کو بچاؤ، اس میں سے ہمیں کریڈٹس ملنے ہیں. پاکستان کے متعدد دلکش علاقوں کی طرح صوبہ خیبر پختونخوا کا علاقہ دیر بھی جنگلات کی دولت سے مالا مال ہے. جنگلات سے بھرے ایسے ہی دیگر علاقوں کی طرح یہاں بھی درختوں کی غیر قانونی کٹائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں تک کہ دیر کا ایک مقامی فارسٹ آفیسر اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران قتل کر دیا گیا. 2 بچوں کے والد کرامت خان نے ایک ایسے ٹرک کو روکنے کی کوشش کی تھی جس میں مبینہ طور پر لکڑی سمگل کی جا رہی تھی. کرامت رشوت نہیں لیتا تھا، اسے اسی لیے ہلاک کیا گیا ہے. ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں. وہ ایماندار آدمی تھا. یہاں درخت زیادہ ہیں اور ان کی حفاظت کرنے والے لوگ کم ہیں. کرامت خان کے قتل کے ذمہ داران ابھی تک پکڑے نہیں جا سکے. اس علاقے میں خوف کی ایک ایسی فضا بنا دی گئی ہے کہ کوئی سرکاری اہلکار ٹمبر سمگلنگ کے بارے میں بات تک نہیں کرتا. ڈویژنل فارسٹ آفیسر معصوم شاہ کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں تو سمگلنگ ہوتی ہی نہیں، گو کہ ان کے دفتر کے احاطے میں ہی سمگلنگ کی ضبط شدہ لکڑی پڑی دیکھی جا سکتی ہے. سمگلنگ نہیں کی گئی، سمگلنگ بالکل نش برابر. ڈی ڈبلیو کے نامہ نگاروں نے دیر میں کئی ایسے ٹرک دیکھے جن میں لکڑی سمگل کی جا رہی تھی. مقامی پولیس اہلکاروں کے مطابق یہاں اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. یہ صرف 3 دروازے ہیں جو ہم اپنے گھر کے لیے لے کے جا رہے ہیں. یہ اسمگلنگ نہیں ہے. ان کا طریقہ واردات ہی یہی ہے. یہ 3, 4 یا 5 دروازے اسمگل کرتے ہیں اور انہیں شہروں میں جا کر بیچ دیتے ہیں. یہ ویڈیو دیر کے علاقے شرنگل کے ایک ماحول دوست ایکٹیوسٹ نے بنائی جس میں درختوں کی بے درے کٹائی کے مناظر آیا ہیں. اپنی شناخت مخفی رکھنے کی شرط پر انہوں نے یہ ویڈیو ڈی ڈبلیو کو دی. ڈی ڈبلیو نے جب یہ ویڈیو اسسٹنٹ کمشنر شرنگل حافظ اللہ کو دکھائی تو انہوں نے اس بارے میں فوری کارروائی کی. تاہم حافظ اللہ کے بقول افسر شاہی کی وجہ سے ان مشکلات پر قابو پانا آسان ہرگز نہیں. ہمیں بھی کچھ ایسے شواہد ملے کہ بعض اوقات جو نگران ہے وہ آ کے وہ بن جاتے ہیں، خود مافیا کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. اس طرح مجھے شبہ ہے کہ شاید فارسٹ والے ان کے ساتھ ملے ہوئے. پروسیکیوشن کا کیس اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کو پروو کرنا پھر ممکن نہیں ہوتا. ٹمبر سمگلنگ روکنے کی خاطر چیک پوسٹوں پر تعینات سیکورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ سمگلرز طاقتور ہیں اور ان کے پاس جدید اسلحہ ہوتا ہے، جبکہ سیکورٹی اہلکاروں کو تو ایسے وسائل ہی نہیں دیے گئے کہ وہ کسی سمگلر کا مقابلہ کر سکیں. دیر کے علاقے میں فعال ماحول دوست کارکنان کی کوشش رہتی ہے کہ وہ ان مسائل کو عوامی اور بین الاقوامی سطح پر اجاگر کریں. روہیل خان بھی انہی میں سے ایک ہے. شرنگل یونیورسٹی میں میڈیا انچارج کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھانے والے روہیل نے ٹمبر مافیا کے خلاف ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شائع کی تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے سمگلروں کے خلاف ایکشن لینے کے بجائے روہیل پر ہی مقدمہ کر دیا. اگرچہ اس مقدمے کا فیصلہ روہیل کے حق میں ہوا لیکن اس علاقے میں ٹمبر مافیا کے خلاف پائے جانے والے خوف کی فضا میں مزید اضافہ ہو گیا. تو بنیادی مقصد ان لوگوں کا یہ تھا کہ اس کا آواز ہم دبائیں گے تو آئندہ کے لیے یہ ایسا نہیں کریں گے. حالانکہ میرا کوئی اس طرح کوئی مقاصد نہیں تھی میری کہ میں اس کو یا بدنام کروں یا کسی محکمے کے کسی بندے کو میں پریشرائز کروں. یہ میرا بالکل مقصد نہیں تھا. میں نے ایک نیتی سے گیا تھا اور میرا یہی مقصد تھا کہ میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے یہ نوٹس میں لاؤں کہ اگر بڑی درخت کوئی کاٹ دیتا ہے تو چلو پھر بھی کوئی بات ہے کہ اس کی ضرورت ہو، لیکن ننے درختوں کا جب قتل عام ہوتا ہے تو یہ تو ہمیں تو اس طرح لگتا ہے جیسا ایک انسان کی قتل عام اس طرح ایک درخت کی بھی ہے. ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں جنگلات کی مجموعی کٹائی میں سے 74% غیر قانونی طور پر ہی ہو رہی ہے. ٹمبر مارکیٹ شکدرہ کے صدر محمد یار اس کا الزام حکومت پر عائد کرتے ہیں. جتنے بھی وزیر منسٹر ایون چیف منسٹر تک اس میں سب یہ بڑے لوگ ملے ہوئے تھے. میرا اور آپ جیسے بندے نہیں کر سکتے. یہ اسمگلنگ میں یہ ان کی ایما پر ہوتا ہے. کوئی اس کے بغیر ہو سکتا ہے؟
एक इंच भी इधर उधर नहीं हो सकता। अगर ये साथ नहीं मिले होते तो एक इंच भी नहीं इधर उधर नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में टिम्बर स्मगलिंग का मामला कई मरतबा मकामी खबरों की जीनत बना, लेकिन फिर ये कहीं गुम होकर रह गया। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली हमायूं खान का इसरार है कि दरअसल हुकूमती पॉलिसी की वजह से स्मगलर्स को तकवीयत मिलती है। अभी मेरे ख्याल में इधर तो 60-65 हज़ार की फुट की लकड़ी पड़ी है, और ये ब्यूरोक्रेसी या अफसरशाही जो इसको कहते हैं उसकी गफलत की वजह से ये लोग इसमें डिले टेक्टिक्स इख्तियार करते हैं, और इसलिए जो स्मगलर हजरात हैं वो प्रमोट होते हैं। पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, जितनी भी है, हमने अपना काम छोड़ा हुआ है हर एक डिपार्टमेंट ने, और दूसरों का काम शुरू किया है। हमारी सिक्योरिटी का काम पुलिस का काम है, अभी हमारी जो बॉर्डर्स का काम है ये हमारी आर्मी का काम है। आर्मी वाले इधर काम करते हैं, पुलिस वाले अपना काम नहीं करते। मकामी सहाफ़ी अहमदुल हक का मानना है कि अगर सियासी अज़्म हो तो टिम्बर की स्मगलिंग रोकना हुकूमत के लिए कोई बड़ा टास्क नहीं। ये जीटी रोड है, दीर पेशावर जीटी रोड है, हमारा तो सिर्फ वाहिद ये लिंक है। अगर स्मगल हो रहा है तो इसी रूट से हो रहा है। जितना कटाई हो रही है इसके मुकाबले में जितने भी ये सरकार ये कर रहे हैं फॉरेस्ट वाले, ये 10% नहीं होगा। दीर में दो तरह के ग्रुप जंगलात की गैर कानूनी कटाई में मुलविस हैं। एक का ताल्लुक माफिया से है, जबकि दूसरा गिरोह गुर्बत और तवानाई के जराए की खातिर जंगल काटता है। TW ने टिम्बर माफिया से वाबस्ता एक स्मगलर से पूछा कि वो ये काम कैसे करते हैं। हम ये टिम्बर अगर अपने गांव में बेचें तो 600 रुपये फुट मिलता है, और अगर बाजार में बेचें तो 1000 से 1200 तक फुट मिल जाते हैं। लकड़ी जितना दूर ले जाएं कीमत उतनी ज़्यादा हो जाती है और हमें ज़्यादा बचत होती है। फॉरेस्ट वाले एक दरख्त काटने का इजाज़तनामा देते हैं तो हम 4 या 5 काट लेते हैं। फॉरेस्ट वालों को हम कुछ पैसे या लकड़ी देते हैं। मिसाल के तौर पर 4 दरख्त हमारे होते हैं और एक दरख्त के पैसे या लकड़ी हम उन्हें दे देते हैं। हमें खौफ नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट वाले हमारे साथ हैं। 2009 में जब यहाँ आर्मी आई तो फौजी ऑपरेशन के दौरान उन्होंने इतना असलहा जमा नहीं किया जितना कि लकड़ी इकट्ठी की। और एक गिरोह अपनी रोजमर्रा की जरूरियात के लिए इस गैर कानूनी काम में मुलविस है। भाई साहब, हम आपके लिए तो ये दरख्त है, लेकिन हमारे लिए ये रोजगार का और रोजे का असबाब है। ये हम काटेंगे, बेचेंगे, इस पे जो है ना रोजी भी लाएंगे, आटा भी लाएंगे, स्कूल के लिए बच्चों का फीस भी है, डॉक्टर की दवाई है, महंगाई है, मुल्क हालात है, ऐसे कोई काम है ही नहीं। दीर का मतलब है मुश्किल रसाई, यानी इस मकाम का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ आना इंतहाई मुश्किल काम होता था। लेकिन किसको मालूम था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब स्मगलर्स के लिए दीर एक आसान रसाई बन जाएगी। मकामी रिहायशी इब्राहिम के बकौल यहाँ सड़कें और आमदोरफ्त की ज्यादातर सहूलियात टिम्बर माफिया की कोशिशों से ही बनाई गईं, ताकि उन्हें लकड़ी की स्मगलिंग में मुश्किल न हो। स्मगलर्स ये लकड़ी अहम हुकूमती अहलकारों के लिए लेकर जाते हैं। मिसाल के तौर पर MPA, MNA, यहाँ सड़कों पर टिम्बर से भरी गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं। इस काम में सब मिले हुए हैं। इस स्मगलिंग की वजह से दीर में टिम्बर के कानूनी कारोबार को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। सिर्फ 4 दिहाइयों कबल ही इस इलाके में इस कारोबार से हजारों अफराद का रोजगार वाबस्ता था। ताहम अब स्मगलिंग तो जारी है, लेकिन लकड़ी का कानूनी काम ठप होकर रह गया है। पूरी एशिया में ये लकड़ी का सबसे बड़ा मार्केट था। KG चतराल में, शेरिंगल में और मुख्तलिफ रोड साइड डिपो पर हमारे साथ तक लाखों के हिसाब में लकड़ी पड़ी हुई है कि उन लकड़ी को फरोख्त करके, जिसमें 60% इसी लकड़ी में 60% शेयर जो है ये लोकल कम्युनिटी की होती है। लेकिन स्मगलिंग के लिए या जंगलात को बचाने के लिए जो लोकल कम्युनिटी है, उसी लोकल कम्युनिटी को आपने एतमाद में लेना है। स्मगलिंग तो शुरू है, ये कानूनी वाला बंद है। पूरे पाकिस्तान में इधर से लकड़ी जाती है। अभी जो हमारे पास ये लकड़ी पड़ी हुई है, ये बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ वो सेम टू सेम लकड़ी है। मतलब सबसे कीमती चीज़ हमारे पास है, सबसे कीमती लकड़ी हमारे पास। माहौलियाती तब्दीलियों और आलमी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत और भी ज्यादा हो चुकी है।
माहौल दोस्त कारकुन एहसानुल्लाह के बकौल लोगों को इस हवाले से मकामी हिकमत के तहत आगाही देने की जरूरत है। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि माजी में यहाँ का तर्ज ज़िंदगी मुख्तलिफ था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। गो कि यहाँ के मकामी लोग तवानाई की ज़रूरियात की खातिर लकड़ी काटते हैं, लेकिन अगर उन्हें गैस और बिजली की बुनियादी सहूलियात फराहम कर दी जाएं तो ऐसा नहीं होगा। मकामी लोगों को जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर देने की खातिर हुकूमती सतह पर कोशिशें करना होंगी। इसके लिए सिर्फ सियासी अज़्म दरकार है। ताहम स्मगलर्स को रोकने की खातिर कुछ मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाना होगी। लाहौर में फ़ाल माहिर अर्जियात नईम अहमद बाजवा कहते हैं कि कार्बन मार्केटों से जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन है। कार्बन मार्केट्स एक ऐसा तजारती निज़ाम है जिसके तहत कार्बन क्रेडिट की खरीद फरोख्त की जाती है। कंपनियां या अफराद आलमी दर्जा हरारत में इजाफे का बायस ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को ख़त्म या कम करने वाले इदारों से कार्बन क्रेडिट खरीद कर अपनी ग्रीन हाउस गैसों के अखराज की तलाफी के लिए कार्बन मार्केट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नईम अहमद बाजवा का इसरार है कि पाकिस्तानी हुकूमत भी जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाकर कार्बन एमिशंस को रोक सकती है। यूं कार्बन क्रेडिट्स के एवज डॉलर्स भी कमाए जा सकते हैं। ताहम उनका कहना है कि इसके लिए एक जामे हिकमत अमली दरकार होगी। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं कार्बन क्रेडिट के, ये हमें हेल्प करेंगे लॉन्ग टर्म के अंदर। गरीब मुल्कों के अंदर ऑफसेटिंग इज़ ईजियर, पर्टिकुलरली नेचुरल ऑफसेटिंग, यानी कि दरख्त आप लगा लें, आप उससे ऑफसेटिंग करें, फॉरेस्ट लगाएं, आप उससे ऑफसेटिंग कर लें। ये गरीब मुल्कों के अंदर पॉसिबल है क्योंकि कॉस्ट उनको कम पड़ती है। बाकी जो है हमारी जो कंपल्शंस हैं वो हमें फोर्स करती हैं कि हम अपने कार्बन इतने कोई अर्न करने की पोजीशन में नहीं है, बट वी कैन डू इट। इंडिया इज़ डूइंग इट, वी शुड डू इट ऑल्सो। ये तो हमारे एंटरप्रेन्योर, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को सोचना चाहिए कि एक चीज़ है जो कि बहुत सारे पैसे जिस पर हम अर्न कर सकते हैं। पाकिस्तान ने कार्बन क्रेडिट हासिल करने का एक मंसूबा कामयाबी से मुकम्मल किया है, जिसमें हुकूमत सिंध मैंग्रोव के जंगलात के लिए कार्बन क्रेडिट हासिल कर चुकी है और उन्हें सन 2022 में $14.75 मिलियन की पहली किस्त मिली, जो अगले 5 सालों में बढ़कर 24 से 25 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। In fact, this is also another blessing in disguise. People will protect the forest, countries will protect their forests. वो लगाएंगे तो कहेंगे इनको बचाओ, इसमें से हमें क्रेडिट्स मिलने हैं, तो इसको कम से कम उसकी नेचुरल लाइफ तो पूरी गुजारे। कम से कम वो उसने 50 साल जो जिंदा रहना है उस तक तो कार्बन को ट्रैप रखे ना, बजाय इसके कि आप उसको फौरन उसको काट दें। तो मालूम हुआ कि जनूबी एशिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान भी कार्बन क्रेडिट स्कीमों से डॉलर्स कमा सकता है, लेकिन जरूरत है सियासी अज़्म की। इसमें कोई शक नहीं कि दीगर तरीकों के साथ साथ जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ से भी बड़े पैमाने पर कार्बन क्रेडिट हासिल किए जा सकते हैं।